Get you details of the top focus story on Times Now. Bihar Education Minister and RJD leader Chandrasekhar's insulting remarks on Ramcharitmanas has further increased tensions between the Mahagathbandhan alliance partners in Bihar. The rift between the JDU and the RJD has widened after Chandrasekhar claimed that the holy book on Lord Ram spread hatred in the society and that the book says that lower caste becoming poisonous after getting education. The JDU has now slammed its coalition partner RJD, claiming that the remarks have hurt Hindu sentiments and were shameful. JDU MLA Sanjeev Kumar even said that if the Bihar minister does not apologize, then he must convert to either Islam or Christianity. The JDU also protested against the RJD, with its leader Neeraj Kumar reciting couplets from Ramcharitmanas along with the party workers. Listen in to the JDU's advice for its alliance partner. रामचरितमानस के बारे में उन्होंने जैसा बयान दिया है, इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी भी वक्त है माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको सामने आकर के माफी मांगना चाहिए। गलती करके डिफेंड नहीं करें। अगर आप माफी मांगने से इनकार करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अन्य धर्म में चले जाएं, हिंदू धर्म त्याग दें, आप इस्लाम का पालन करने लगे या क्रिश्चियनिटी धर्म को पालन करें, अन्य धर्म चले जाएं। उस बयान से हम तफरका रखते हैं। हमको लगता है कि उनका बयान जल्दीबाजी में दिया गया बयान है और कहीं ना कहीं उनके जो बहुत थॉटफुल बयान नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि कई मुद्दों पर राजनेताओं को ऐसे बयान जारी करने के पहले संयम बरतना चाहिए। कि राजनेता के तौर पर आप एक रोल मॉडल हैं, लोग आपके विचारों का अनुकरण करते हैं और वहीं जहां श्रद्धा खंडित हो तो फिर लोग सवाल भी खड़े करेंगे। कि कई लोग ऐसे सवाल खड़े करते हैं कि गठबंधन में कहीं कोई इससे तनाव तो नहीं उभरा है। The RJD meanwhile does not see any problem with its minister's remark on the Ramcharitmanas. Deputy Chief Minister Tejasvi Yadav instead took on the BJP, claiming that the party was resorting to such tactics to create trouble for the Mahagathbandhan as it was rattled over losing power in Bihar. Listen in. देखिए, इस पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। वो क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं ये सब लोग जानते हैं। कि भाई सत्ता से जब बाहर हुई बीजेपी तो अभी भी उन लोगों को ये बात जो है पचने दी। और हम सब लोग समाजवादी लोग हैं, हम सब लोग मिल कर के हम लोगों की तैयारी है कि 2024 में किस प्रकार से जो है भाजपा को हराए। और केवल बिहार की बात ही नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी और हम लोग खुद राष्ट्रीय जनता दल मिलकर के लगे हैं कि देश भर में विपक्ष को जो है गोलबंद किया जाए। तो असल घबराहट जो है वो 24 का है। Well, even as the Mahagathbandhan partners continue to spar over the latest controversy on Ramcharitmanas, the posters depicting Chief Minister Nitish Kumar as Lord Ram and Prime Minister Modi as Ravan have also emerged outside the RJD office in Patna on Saturday. The BJP has questioned the alleged hypocrisy of the RJD and asked Chief Minister Nitish Kumar as to why a free pass was being given to those who insulted Ram and Hindu Astha. Well, instead of telling the minister, they should tell this to Mr. Tejasvi Yadav, their partner in the government. And then, whereas the head of the RJD is supporting him and is on record saying that we support all such elements or all such ministers or any other saying by such ministers. So, which is shocking that they are hitting the Sanatana. I mean, they are hitting the basic ethos of the country. I'm hopeful Mr. Nitish Kumar will take up this matter with Tejasvi Yadav. Now let's also listen into the Bihar Education Minister's statement that has really sparked off the entire controversy and how he continued to remain defiant when confronted by Times Now. मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था
और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। मैं हंड्रे को नफरत से देखता, भाई ये क्या होगा। आज के तारीख में मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी मधुबनी के दुर्गा मंदिर में गए पूजा करने, 6 साल हुआ है भाई, मुख्यमंत्री गए और आपने उसको गंगा जल से धो दिया। किन पाखंडियों ने धोया? यही परमहंस टाइप के लोग धोए होंगे। तो मैं ये कहता हूं, छोड़िए मुख्यमंत्री जी राज के। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन करके गए जगन्नाथपुरी मंदिर में, किसने गर्भगृह में नहीं घुसने दिया? ये चला है संघर्ष। इसलिए 3000 साल पहले मनुस्मृति के जो ये छंद हैं जाति के नाम पर अपमान का, इसका विरोध होना चाहिए। रामचरितमानस में जो ये छंद है उत्तरकांड, सुंदरकांड के, अरण्यकांड के, इसका विरोध होना चाहिए। All right. Dr. Dhananjay Giri, BJP spokesperson, Lav Kumar Singh, JDU spokesperson, and Chitranjan Gagan, RJD spokesperson, joining us on the broadcast. This is not a new controversy to Bihar. It's been brewing in the last few days. RJD leaders, one after the other, insulting the Hindu faith, but no response coming in from the RJD. In fact, Tejasvi Yadav even believes it's okay. There's nothing wrong with these statements that have been made. But now it's the JDU that has questioned the RJD. Lav Kumar Singh, now after 3, not just 1 or 2, 3 RJD leaders have insulted the Hindu faith. The JDU now suddenly joining hands with the BJP in protest. Is the party now having second thoughts about being in power with RJD? Mr. Lav Kumar? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है जी। मैं एक शेर से शुरू करना चाहूंगा। श्री राम पे लिखूं मेरी औकात नहीं कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर वैसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, आके वतन के जेल से बाहर नहीं हूं मैं। शमसी मिनाई का शेर, इससे स्पष्ट होता है कि राम जी पर अंगुली उठाने से पहले उनको सोचना चाहिए था। निश्चित तौर पर इस तरह के बयानों से राजनेताओं को बचना चाहिए। और जो बयान उन्होंने दिया है, बिल्कुल करोड़ों लोगों के आस्था पर कुठाराघात करने का काम किया है। निश्चित तौर पर अगर वो समय रहते इस बयान को वापस ले लेते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि राम जन जन के में बसते हैं। राम सबों के लिए सर्वमान है। राम उस राम का नाम है जिसने जीवन पद्धति दिया है इस देश को, जिसने बताया है कि सबरी का झूठा बेर खाया जाता है, और जो अपने राज्याभिषेक में सिर्फ एक ही ऑफिशियल गेस्ट थे जिनको बुलाया, उस आदमी को वो निषाद थे। तो लव कुमार जी, वो अपना स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, जो बयान उन्होंने दिया है, वो वापस तो वो नहीं लेंगे, ये उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि उसमें कुछ गलत नहीं कहा है, ये तो बीजेपी को दिक्कत हो रही है इनके स्टेटमेंट से। तो जेडीयू कोई एक्शन लेगी? आप उनके साथ हैं पावर में इन द स्टेट, आप कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, लेकिन वो तो वो करने वाले हैं नहीं। तो यू आर इन पावर विद देम, आर यू गोइंग टू टेक एनी एक्शन? देखिए, एक्शन लेना, मैं यहाँ पे एक्शन लेने के बारे में बोलने के लिए कोई भी अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ। ये गठबंधन का सरकार है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें समीक्षा करेंगे। नेताजी लोग, हमारे जो सर्वमान नेता है, वो लोग बात करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि राम के प्रति आवाज उठाने से आस्था पे ठेस पहुंची है। तो ठेस पहुंची है तो आपको, हो सकता है ठेस पहुंची है तो आपको गवर्नमेंट के लिए तो भी सोचना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि All right, let me take this across to Chitranjan Gagan. Chitranjan Gagan, the JDU leader, in fact not just one, several JDU leaders saying that this is not acceptable, ये statement वापस लेना चाहिए, लेकिन it doesn't seem like it's happening. 3 RJD leaders have now insulted the Hindu faith. The JDU now questioning the RJD. देखिए, कहीं से भी इसमें भगवान राम के प्रति या रामचरितमानस के प्रति कहीं भी इसमें घृणा की बात नहीं कहेगी। उनकी आस्था पर कहीं भी सवाल नहीं खड़ा किया गया है, वो एक पंक्ति पर सवाल। लेकिन अभी भाजपा जो है इसको गलत रूप देना क्या चाहती है, इसको गलत रूप से इसको पेश किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। और वह जो सवाल उठाया जा रहा है महागठबंधन के सवाल पर, तो महागठबंधन एक बहुत बड़े मिशन को लेकर इसका गठन हुआ है। और बिहार में जो एक गैर भाजपा दल जो भी हैं, सभी एक फ्रंट पर आए हैं। और इससे जो एक पूरा देश में एक मैसेज गया है, पूरे देश में,
जो भाजपा विरोधी जो भी राजनीतिक दल हैं उनको एक मंच पर आने के लिए, और 24 का जो हम लोग का मिशन है, एक बहुत बड़ा मिशन लेकर महागठबंधन आगे बढ़ रही है भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए। अब यही छटपटाहट में, इसी बेचैनी में भाजपा जो है इसको गलत दिशा देने का काम कर रही है। जबकि आस्था का अगर सवाल उठता है तो जो है सो भाजपा नेताओं के द्वारा तो सीधे भगवान पर ऐसी ऐसी टिप्पणियां की गई है, महामर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर, माँ जानकी के ऊपर, महावीर जी के ऊपर ऐसे ऐसे टिप्पणियां की गई हैं। तो भाजपा जो आज यह सवाल उठा रही है तो भाजपा को पहले तो उन सवालों का जवाब देना चाहिए था कि जब वहां पर उत्तर प्रदेश में उनके डिप्टी सीएम थे दिनेश शर्मा जी, उन्होंने तो माँ सीता पर सवाल उनके द्वारा उठाया गया था, बेबी उनको जेपी पे जो सवाल उठा रहे हैं अपने नेता पे ये सवाल उठाएंगे क्या? रामचरितमानस के पंक्ति पे सवाल उठाए ये कह रहे हैं आप? नहीं, कहीं भी रामचरितमानस के प्रति या भगवान राम के प्रति आस्था पर कहीं कोई सवाल उठाने का प्रश्न ही नहीं है। उसमें कण-कण में राम बसे हुए हैं, जन जन में रामचरितमानस बसा हुआ है, उस पर कोई सवाल आरजेडी के नेता ने कहा है कि कूड़ा कचरा है रामायण में, इसके पहले कहा है नफरत की जमीन पे राम मंदिर बन रहा है। नहीं, उसमें यह भी कहा गया है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो हम लोग के आदर्श पुरुष रहे हैं उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि रामचरितमानस में हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। हीरा मोती बहारने के फेरा में जो है, कूड़ा कचरा बहारने के फेरा में हीरा मोती नहीं बहारना चाहिए, और हीरा मोती खाने के फेरा में कूड़ा करकट जो है उसको भी नहीं खाना चाहिए। स्पष्ट है, काफी उसमें अच्छाइयां हैं समाज में। हर सवाल का जवाब आपको रामचरितमानस में मिल जाएगा। मैं खुद रामचरितमानस का पाठ मैं करता हूँ, रेगुलर करता हूँ, और लोगों की आस्था है, उस पर कहीं सवाल उठाने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि भाजपा के लोगों ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम सवाल कैसे नहीं उठाएंगे वो? ऐसे अगर ऐसे बयान आ रहे हैं उनकी तरफ से तो सवाल तो उठाएंगे। डॉक्टर धनंजय, आरजेडी सेइंग दैट no matter what the JDU is also going to support its fight for a BJP free nation, तो दोनों साथ में रहेंगे, but it doesn't look like as the BJP is protesting the JDU has also now extended support. See, this is not a question of satta. We are not worried for the ruling party or power or opposition. We are worried for the nation. The nation belongs to Ram. Ram is not only ethos. This is the faith of in Hindustan. This is the reflection of Indianness, the culture of our culture. The thing is here, JDU is doing bullfight because Mr. Nitish Kumar is on the mercy of RJD. He is the third grade party on the third grade, and he is getting support from RJD. So he is on the mercy ground. He is chief minister. So he is not in a position to take action against RJD. As far as RJD is concerned, appeasement politics is the base of RJD. If you go for Chandrasekhar statements, his one old statement is running in the Twitter is trending, in which he is saying that Islam is the religion of peace and prosperity. So now everything has been clear. If you add both the statement of him, it is already clear. What he is doing for his agenda. This is agenda for appeasement politics, the politics for to take the vote of a particular mass vote of the particular community, and they are trying to demean the Hindus, the society of the Bahusangkhyak society of the India. Okay. They are trying to demean, and they are trying to patience test. Because this is the main thing is this कि को सोचना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। नहीं, लव कुमार जी बोल रहे हैं या जनता दल के जो साथी बोल रहे हैं, उसको जो भाजपा कर रही है, एक गया जो बना है महागठबंधन जो बना है, ग्रैंड अलायंस जो है, यह जो है बहुत बड़े मिशन को लेकर बना है। अब वह बड़ा मिशन लेकर इन सब बातों को जो भाजपा तूल दे रही है, और भाजपा अभी जो धनंजय जी कह रहे थे राम जी के प्रति, मैं तो वही पूछना चाहता हूं भाजपा से कि संजय निषाद जो इनके बहुत महत्वपूर्ण साथी इनके हैं, इनके मंत्रिमंडल में वहां शामिल हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने तो भगवान राम के जन्म पर सवाल खड़ा किया है। इनके साथ नरेश अग्रवाल जी हैं जो राम जी को रम कहते हैं, सीता जी के बारे में उनका क्या बयान है, सीता जी को जीन कहते हैं, महावीर जी को थर्रा कहते हैं। अब बताइए यह कहाँ आस्था चली गई? आस्था के नाम पर ये लोग जो है
सो दूसरे को आप अपने अलायंस पार्टनर की बात कीजिए ना। जेडीयू आप कह रहे हैं ना, ये बस यहाँ डिबेट में नहीं कह रहे। जेडीयू के एमएलए संजीव ने ये भी कहा है कि अगर या तो आप अपना बयान वापस लीजिए, वापस नहीं ले रहे हैं तो या तो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाइए। 24 में इनका सफाया निश्चित है। इसी बेचैनी में, इसी छटपटाहट में दाएं बाएं ये अपना जो है सो इधर उधर भटक रहे हैं, सर बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं, अपनी अलायंस पार्टनर की बात कीजिए। जेडीयू का बयान ये है और उन्होंने ये कहा है, आई वांट टू प्ले आउट जेडीयू एमएलए संजीव कुमार, जिन्होंने ये कहा है कि जो आरजेडी के नेता हैं जो ऐसे सवाल उठा रहे हैं, जो ऐसा बयान दे रहे हैं, उनको या तो माफी मांग लेना चाहिए या तो उनको कन्वर्ट कर लेना चाहिए, अदर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ही शुड नो लॉन्गर बी अ हिंदू। ये कहा है आपके अलायंस पार्टनर जो एमएलए हैं, उन्होंने ये कहा है। मैं कह रहा हूं कि महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व इतना परिपक्व है कि ये सब जो है सो कौन क्या बोल रहा है, इन सब चीजों पर नजर न देकर, ध्यान न देकर, सीधा जो गोल मेरा है, जिस मिशन को लेकर हम एक साथ आए हैं, सीधा मेरा ध्यान उस मिशन की ओर है और हम उस मिशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है, बेरोजगारी के सवाल पर आगे बढ़ रही है और जो भी जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, उन सवालों को हम अधिक से अधिक लेकिन कोई एक्शन नहीं लेने वाले। ओके, the RJD now sticking by the stance. In fact, it's not just the leaders here, but also Tejaswi Yadav, who says that it is the BJP that seem to have problems, is rattled by the fact that it's no longer in power. But the JDU seem to be having second thoughts, taking a stance against its own alliance partner. Thanking you all for joining us on the broadcast on this debate. Slipping into a quick break here. We'll be right back with the top stories. Do stay with us.